Good morning, all of you. So, today we are starting with the topic significant figures. This is very easy topic and it is easy to score as well, right? In the last video, we have done dimension analysis, right? In the dimensions, we have studied many of the topics and some questions as well of the previous years. So, now we are starting with the significant figures. So what are the significant figures? Let us start with the question so that you can come to know what is the need of significant figures. Right? Suppose we have 3.0 kilometer, right? So 3.0 kilometer is equal to this. So this is the question, right? So now the options are given to us here. A option is given, which is 3000 meter. B option is given to us. This is 3.0 multiply 10 raised to power 3 meter. And the C option is given to us, which is 0.3 multiply 10 raised to power 4 meter. And D is all of the above. Okay, so this question is given to us. So if you are seeing from here, you can say 3 kilometer is 3000 meter. This is also correct. You can say 3 into 10 raised to power 3 meter. This is also correct from your side. 0.3 into 10 raised to power 4 meter. This is also correct from your side, and all of the above is also correct. If you see by your mathematical calculations, you can say all the options are correct. But according to significant figures, if we can calculate, this is not correct. All the options are not correct. From this, only this option is correct. Only this option is correct according to the significant figures. So let us move to the video and the further questions. Then you come to know how this answer is correct. Okay. So firstly, we will write the definition of the significant figures. That what are the significant figures? So these tell us about, you can write, they tell us about the number of digits in a measured value we are confident. Suppose we are having a value, we are confident of that value. So it is calculating the number of digits in that measured value. Okay. So this is the significant figures. So if more are the number of significant figures, that means more accurate measurement it is. That means more the significant figures, more will be the accurate measurement. Right? Okay. So this is the significant figures. So let us write the rules for the significant figures. Rules for calculating the significant figures.
So we are writing the rules for calculating the significant figures. So there are many rules. Okay. So first rule is all non-zero digits are significant. And its short form we can write SF. Okay. All non-zero digits are significant. इसका मतलब है कि जितने भी हमारे डिजिट्स हैं जिनमें जीरो नहीं है वो सारी क्या हैं, सिग्निफिकेंट है. फॉर एग्जाम्पल जैसे आप ले लो 1313, दिस इज द नंबर. सो इसमें एक भी जीरो नहीं है तो ये 4 डिजिट्स पूरी हैं, तो ये क्या है, सिग्निफिकेंट हो गई. तो इस नंबर में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए. राइट. You can take another example, that is 212. So इसमें भी एक भी जीरो नहीं है तो it can be 3 significant figures. Okay. One more you can take. You can take for 2314. Right. So here are also 4 significant figures. So the first rule is clear. That means all non-zero digits are significant. Right. Now second, the second rule is trapped zeros. That means zero between two non-zero digits are significant. Trapped zeros, that means zeros between two non-zero digits are significant. This means if we have a number जिसके बीच में जीरो हो सकती हैं, अगर दोनों साइड नॉन जीरो डिजिट्स हैं और बीच में अगर आपके पास जीरो हैं तो मतलब वो सिग्निफिकेंट काउंट होंगी. राइट. सपोज यू हैव 1.004, तो इसके दोनों साइड नॉन जीरो डिजिट हैं, बीच में जीरो है, तो आपके यहाँ पे सिग्निफिकेंट काउंट होंगी. यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. ओके. जैसे कि आप एग्जांपल ले लो 20.3. 20.3 जीरो बीच में है, तो यहाँ पर आपके कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 3. ठीक है. ऐसे आप कितना भी बड़ा नंबर ले सकते हो. सपोज मैंने ले लिया है 500.006, तो ये दोनों साइड नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो इन दोनों के बीच में ये जीरो बीच में आ रही हैं, तो इसका मतलब ये सिग्निफिकेंट में काउंट होंगी. तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 6. राइट. Let us come to the third rule. What is the third rule? The third rule is initial zeros. That means leading zeros are never significant. Initial or leading zeros are never significant. इसका मतलब है कभी भी किसी भी नंबर के अगर स्टार्टिंग में जीरोस हैं, जिनको हम लीडिंग जीरो भी बोलते हैं, वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं. फॉर एग्जाम्पल 0.002 है, तो इसमें अब स्टार्टिंग में जीरो हैं, तो ये इसका मतलब ये सिग्निफिकेंट नहीं है. ओनली दिस डिजिट इज सिग्निफिकेंट, तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया इसमें. राइट. जैसे कि मैंने ले लिया 0.0104,
तो इसमें ये स्टार्टिंग वाली 0 सिग्निफिकेंट नहीं होंगी, तो ये तीनों डिजिट्स सिग्निफिकेंट हो गई, ठीक है। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए इसमें। यू कैन टेक वन मोर एग्जांपल लाइक 0.312, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, ये तीनों सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। समझ आया? दिस वाज द थर्ड रूल ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट। नेक्स्ट वी कम टू फोर्थ रूल, दैट मीन्स एंडिंग एंड ट्रेल जीरोस। जो लास्ट में होते हैं, एंड में, उनको हम ट्रेल जीरोस भी बोलते हैं। एंडिंग और ट्रेल जीरोस, these are significant if they appear after decimal. सो फोर्थ रूल क्या है कि अगर लास्ट में कभी भी 0 होते हैं किसी भी नंबर में, एंड में, वो सिग्निफिकेंट तभी होंगे जब वो डेसिमल के बाद होंगे, ठीक है। तो इसका आप एग्जांपल ले सकते हो। फॉर एग्जांपल 2.00। अब इसमें देखो डेसिमल के बाद 0 हैं, तो ये तीनों डिजिट्स क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, राइट। जैसे कि मैंने एग्जांपल ले लिया 6.120, इसमें क्या होगा? लास्ट में है 0, डेसिमल के बाद है, तो ये चारों डिजिट्स हमारे सिग्निफिकेंट हो गए, तो ये हो गया 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इज इट क्लियर? जैसे कि मैंने एग्जांपल ले लिया फिर से 0.004120, ये ले लिया। इसमें अभी मैंने बताया था कि जो इनिशियल या लीडिंग जीरोस होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, तो इसका मतलब ये वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, तो जो लास्ट के 4 डिजिट्स हैं ये सिग्निफिकेंट है, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, करेक्ट। हाँ, तो लास्ट में नहीं है। अब जैसे कि आपने एक और एग्जांपल ले सकते हो, इसमें बहुत इजी 300। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट हुआ? देखो डेसिमल के बाद 0 नहीं है, तो इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगा सिर्फ, करेक्ट। यस, we can take one example. Suppose a question, how many significant should be there in 20.00? 20.00. So the zeros are after decimal, so you can write 1 2 3 4. So how many significant figures are there? 4 significant figures. In the next question we can take 131000, right? So how many significant figures are there? See, इसमें जो 0 है वो डेसिमल के बाद नहीं है, तो सिर्फ स्टार्टिंग की 3 डिजिट्स आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई, करेक्ट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सेम इसी का ही ले लेते हैं, 1310 वाला ही। 1310.00 लिख लो अभी। अब इसमें क्या हो जाएगा? सारी डिजिट्स आपकी सिग्निफिकेंट हो जाएंगी क्योंकि ये डेसिमल के बाद है, तो इसमें कितनी हो गई हमारे? 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। लेट अस कम टू द नेक्स्ट रूल, फिफ्थ वन, that is order of magnitude is never significant. Right?
इसमें भी एग्जांपल्स लेते हैं कि जो मैग्नीट्यूड का ऑर्डर है वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होता है। जैसे कि आपने लेना है 2.3 इंटू 10⁻³ तो इसमें जो ऑर्डर होगा ये सिग्निफिकेंट नहीं है, सिर्फ ये दोनों सिग्निफिकेंट है, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। करेक्ट। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल ले लूं, 2 इंटू 10⁻², तो ये नहीं होगा, इसमें सिर्फ 2 है, तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है। सपोज 1400, आप इसको 1400 को कैसे लिख सकते हो? सपोज 1.4 इंटू 10⁻³ भी लिख रहे हो। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 2 हैं, क्योंकि पीछे वाले 0 काउंट नहीं होंगे, डेसिमल के बाद नहीं है। और इसमें देखोगे तो ऑर्डर नहीं होगा, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो दिस इज द 5th rule. Okay, let us come to the 6th rule for calculating the significant figures. This rule is pure numbers have infinite significant figures. Pure numbers or constants we can say. Pure numbers or constants, they have infinite significant figures. This is the 6th rule. So in this we can take one example for the 6th one, that what is meant by pure constants or significant figures. Okay, so let us take one example. Suppose you have a square here of side A. So every side will be A. This is a square. Correct? So if we will calculate the perimeter of this square, it will be 4 times A. Correct? So this is the constant. So this will have infinite significant figures here. This 4 will have infinite significant figures. Okay. Suppose we know speed of light. You know that speed of light c, generally we consider it as 3 into 10⁸ meter per second, right? So what do you mean by this? So this 3 will have infinite significant figures here, because it is a fixed value, constant value. Okay. So because you can write 3.000000 up to so many, so you don't know the number. So the zeros after decimal are significant. Yes. So this can be written from this question, right? Yes. And 7th rule is, if we will change the units, that means while changing units, number of significant figures remains same. Okay. So we can take example for this as well. Suppose we have 1.3 meters. So how many significant figures are here? 2 significant figures. And if we will write it in centimeters, 1.3 will be 130 centimeters. So here also the significant figures are 2, because 0 will not be counted, क्योंकि 0 decimal के बाद नहीं है. So unit is changed, meter and centimeter, but number of significant figures is same. We can take one more example, as we have taken in the starting 3.0 kilometer, right?
So if we can write it in meters, it will be 3000 meters. So here the significant figures are 2, क्योंकि 0 डेसिमल के बाद है, और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 1, क्योंकि 0 डेसिमल के बाद नहीं है तो ये तीनों काउंट नहीं होंगी। अभी इसमें हमने एक और ऑप्शन लिखा था 3.0 इंटू 10⁻³ मीटर, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसमें ये वाली 0 काउंट नहीं होंगी, ये वाला पूरा काउंट होगा, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अभी आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिला जो हमने स्टार्टिंग में किया था, 3 इंटू 10⁻³ मीटर, इसलिए बोला था क्योंकि इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो हमने अगर यूनिट्स चेंज कर दी किलोमीटर से मीटर में, तो उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो सेम रहेंगे। ओके okay, let us do some questions, very simple questions on this topic. You can take 1 2 3, this is the number. How many significant figures are there? 3 significant figures. 2.120, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? 0 डेसिमल के बाद है तो काउंट होगा, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? 4, करेक्ट। नेक्स्ट हम ले लेते हैं 3.0042, 0 डेसिमल के बाद हैं और बीच में है नॉन जीरो के, तो काउंट होंगे। इसमें कितने डेसिमल सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? 5। Next we can take is 310.00, सारे काउंट होंगे क्योंकि डेसिमल के बाद भी हैं और उसके बाद ही हैं, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसी को ही सपोज 3100 लिख लो, तो इसमें कितने होंगे? ये वाले काउंट नहीं होंगे, तो 31 है, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट। नेक्स्ट वी कैन राइट इट एज 4.20, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? इसमें 3, राइट। वी कैन टेक वन मोर एग्जांपल लाइक 0.008, अब इसमें ये काउंट नहीं होंगी क्योंकि ये स्टार्टिंग में है, तो सिर्फ इसका काउंट होगा, तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर। So the rules of calculating the significant figures are clear to you? Yes. Okay. So now we can see rounding off rules. These were the rules of significant figures for calculating them. So these are the rounding off rules. Right. So now we can see rounding off rules from some questions as well. So these are the digits in the mathematics from 0 to 9. Okay. So 0 to 9 are the digits. Okay. So these are the mathematical digits given to us, 0 to 9. Okay, if the digit is 0, so there are 3 cases. So 0 can be anywhere. अगर 0 स्टार्टिंग में है, किसी नंबर के फ्रंट पे होती है अगर, तो वो नेवर सिग्निफिकेंट है, यही अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। अगर बिटवीन अदर नॉन जीरो डिजिट्स है, अगर 0 क्या है, नॉन जीरो के बीच में है, तो हमेशा सिग्निफिकेंट होती है, यही अभी तक पढ़ा। अगर 0 नंबर के एंड में होती है, किसी नंबर के एंड में, तो उसमें 2 टाइप का होता है, या तो वो डेसिमल के साथ होती है कि एक में डेसिमल पॉइंट होता है, और एक क्या होता है कि डेसिमल पॉइंट नहीं होता है। 2 ही केसेस अभी हमने किए हैं। तो जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता है वो क्या है, सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, और जिसमें डेसिमल पॉइंट होता है वो हमेशा
सिग्निफिकेंट होते हैं। यही अभी हमने पढ़ा। और अगर हमारे पास डिजिट्स 1 से लेके 9 तक होती हैं पूरी, तो वो हमेशा सिग्निफिकेंट होती हैं। ये क्या रहेंगी? हमेशा सिग्निफिकेंट रहेंगी। सो दिस इज द समरी ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। जो भी अभी तक हमने पढ़ा है उसकी समरी है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं राउंडिंग ऑफ रूल्स, जो अभी मैंने टॉपिक बताया। तो राउंडिंग ऑफ रूल्स जो है वो हम क्वेश्चंस के साथ ही करते हैं, कि क्वेश्चन लेके कि हाउ इट इज गोइंग टू बी देयर। ठीक है, तो क्वेश्चंस लेते हैं इसके लिए। सबसे पहला क्वेश्चन, क्योंकि राउंडिंग ऑफ के लिए हमें क्वेश्चंस लेना जरूरी है, तभी आप समझ पाएंगे। ओके, तो क्वेश्चन है कि हमें राउंड ऑफ करना है नंबर्स को। टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, so let us take the examples. First question we can take is 3.72. ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, हमें दो सिग्निफिकेंट फिगर्स में करना है, तो हमें पीछे वाला नंबर देखेंगे कि जो ये 2 है हमारा 5 से लेस देन है या नहीं, क्योंकि 5 जो है वो मिडल पॉइंट होता है ना हमारा, 5 से कंपेयर करते हैं। अगर 2 जो है लेस देन है 5 से, तो हमारा जो नंबर है वो इंक्रीज नहीं होगा, तो नंबर विल बी सेम रहेगा, क्योंकि लेस देन है तो सेम रहेगा। तो टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमें लिखना है, तो हम इसका आंसर लिखेंगे 3.7 राउंड ऑफ करके। सिमिलरली इसी का एग्जांपल, अगर ये 3.77 है, अब आप पीछे वाली डिजिट देखोगे तो ये 7 जो है वो 5 से बड़ा है, तो आप क्या करोगे, प्लस कर दोगे 1 आगे वाली डिजिट में। ठीक है, यस, +1 किस में करोगे, इन 7, तो 3.8 हो जाएगा ये, करेक्ट। सपोज आपने नंबर लिया 3.752, अभी हमारे पास 3 डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद, तब आप इसमें ये वाला नंबर चेक करोगे तो ये क्या है, 5 जो है वो इक्वल है 5 के। ठीक है, इक्वल है और फॉलोड बाय है नॉन जीरो, क्योंकि इसके पीछे क्या है, नॉन जीरो नंबर है। नॉन जीरो नंबर है ना, इसके बाद नॉन जीरो नंबर क्या है, यहाँ पे 2 है, तो इस केस में क्या होगा, तब भी वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3.8 आ जाएगा। सपोज आपने एक नंबर ले लिया 4.653, सेम 5 है, चेक करोगे 5 इज इक्वल टू 5, और पीछे क्या है, इसमें भी नॉन जीरो नंबर है। नॉन जीरो नंबर क्या है, इसमें 3 है, तो इसमें भी आप प्लस कर दोगे उसको, आगे वाले को प्लस कर दोगे तो 4.7 आ जाएगा, करेक्ट। यस और नो, यस। सपोज एक नंबर ले लिया मैंने 5.750, ठीक है, एक मैं ले रही हूँ 5.650। अब इसमें आपको देखना है कि जो 5 तो है इक्वल टू 5, बट पीछे क्या है, 0। तो इस केस में क्या देखना है कि जब फॉलोड बाय 0 रहेगा, इसमें भी फॉलोड बाय 0 रहेगा, तो दोनों में फॉलोड बाय 0 है, तो जब 0 रहता है तो उस केस में आप देखते हो कि उससे पहले वाला नंबर ऑड है या इवन है, क्योंकि 5 तो है इज इक्वल टू 5, यहाँ भी 5 इज इक्वल टू 5 है, तो आप चेक करते हो कि उससे पहले वाला नंबर ऑड है या इवन है। अब यहाँ पे 7 है, तो 7 क्या है, ऑड है, और इस केस में आप चेक करोगे 6 है, 6 क्या है, इवन है। तो जब हमारा नंबर उससे पहले वाला ऑड होता है, तो ऑड के केस में आप प्लस कर दोगे, तो आंसर आ जाएगा यहाँ से 5.8।
जब हमारा नंबर इवन है तो इवन में क्या रहने दोगे, सेम। तो सेम के केस में हमारा आंसर आएगा 5.6। ठीक है, तो ये हमारे राउंडिंग ऑफ रूल्स हो गए। ठीक है, यस। अब हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स में, कि अगर हमें कैलकुलेशंस करनी है तो कैलकुलेशंस क्या होंगी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यही होंगी कैलकुलेशंस। तो जब भी हम ये चारों ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, किस पे परफॉर्म करते हैं, मेजर्ड वैल्यूज पे। ठीक है, तो ये हमारी ज्यादा एक्यूरेट नहीं होती हैं, कैन नॉट बी एक्यूरेट, or you can say cannot be more accurate than the least count measurement. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारा रिजल्ट है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सबका मेजर्ड वैल्यूज के अकॉर्डिंग वो ज्यादा नहीं हो सकता। इट कैन नॉट बी मोर एक्यूरेट देन द लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट, राइट। Okay, so we have calculated about calculations. Now first we can see about addition and subtraction in this. First is addition and subtraction. Okay, so for addition and subtraction, so the result will have the same number of decimal places. So we can write result will have same number of decimal places as present in the value with least decimal places. इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट होगा उसमें जो उतने ही डेसिमल प्लेसेस होंगे जितने हमारे उस वैल्यू में प्रेजेंट हैं जिसके अंदर हमारे कम डेसिमल प्लेस हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज एग्जांपल है 2.24 प्लस 0.3 है, इनको हमें ऐड करना है। सो हम ऐड करेंगे नॉर्मल जैसे हम करते हैं, 2.24 0.3 ऐड किया, इट विल बी 4 5 2 2.54, करेक्ट। टू 2.54, राइट। अब हमें इसके अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट देखना है कि लीस्ट डेसिमल प्लेस किसमें है। देखो सबसे कम डेसिमल प्लेस इसमें है, इसमें कितना है, 1 डेसिमल प्लेस है।
तो हमारा जो आंसर होगा वो भी इसके अकॉर्डिंग ही होगा कि 1 डेसिमल प्लेस ही होना चाहिए उस आंसर में भी। तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे 1 डेसिमल प्लेस के लिए? 2.5. So this will be the answer of this question. एडिशन और सब्ट्रैक्शन है ना, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में यही होता है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आपको 0.331 प्लस 1.12 प्लस 0.03 ऐड करना है। तो अब हम इसको कैसे ऐड करेंगे? 0.331 1.12 0.03 ऐड करेंगे तीनों को। So after addition, what will be the answer? 3 to 5, 3, 8, 4 and 1. 1.481 will be the answer, right? अब हम डेसिमल प्लेस चेक करेंगे। इन तीनों में से सबसे कम डेसिमल प्लेस कौन से में है? तो इन दोनों में कितने हैं? 2 डेसिमल प्लेसेस हैं। तो अब हम इसके अंदर 2 डेसिमल प्लेस देखना है। तो 2 डेसिमल प्लेस का आंसर क्या होगा? 1.48. So this will be the answer of this question. राउंड ऑफ कर दिया ना, कि राउंड ऑफ तो करना ही है। ठीक है, तो हम उसको राउंड ऑफ करके ही लिखेंगे हर आंसर को, क्योंकि जब भी इस क्वेश्चन में होता है तो उसमें हम राउंड ऑफ करके ही लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट होगा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसमें तो हमने डेसिमल प्लेस देखा। अगर हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात करें तो उसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में क्या होता है कि जो आंसर होता है उसको हम राउंड ऑफ करते हैं। सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जितने किसमें प्रेजेंट होंगे, जिसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, एज प्रेजेंट इन द वैल्यू विद लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जिसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उसके अकॉर्डिंग हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें भी आप एग्जांपल ले सकते हो। सपोज मैंने एग्जांपल लिया है 2.1 इंटू 2.1। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2। इसमें भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2। दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आएगा? 4.41। सपोज दिस इज द आंसर। अब हमें इसको राउंड ऑफ करना है किसमें? टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में, क्योंकि वैल्यू में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो ये 1 है तो सेम ही रहेगा। 1 इज लेस देन 5, तो राउंड ऑफ करके 4.4 ही आएगा। तो 4.4 आंसर हो गया इसका, क्योंकि हमें 2 डेसिमल प्लेस तक ही लिखना है। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सपोज ये है आपके पास 142.06 मल्टीप्लाई 0.23। इन दोनों को करके आपका आ रहा है 32.6728। अब आपको बताना है कि राउंड ऑफ करके इसका आंसर कितना है। ठीक है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 5। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2। तो इसका आंसर हमें किस में राउंड ऑफ करेंगे? 2 में, क्योंकि सबसे कम वाले जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो हैं 2। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अराउंड राउंड ऑफ करोगे। देखो ये 6 है, 6 इज ग्रेटर देन 5, तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा डिजिट को। तो इट विल बी 33। सो 33 विल बी द आंसर। करेक्ट। एक हम डिवीजन का भी देख लेते हैं एग्जांपल। डिवीजन का अगर देखेंगे तो आएगा 0.90 को डिवाइड करेंगे 4.26, इट विल बी इक्वल टू 0.21126। सो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स देखेंगे। देखो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2।
इसके अंदर देखो तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो हम किसके अकॉर्डिंग इसको राउंड ऑफ करेंगे? दो में, क्योंकि दो ही हैं कम वाले, तो दो में अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड ऑफ करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 0.21. दिस विल बी द आंसर. करेक्ट. So in this question 33 was the answer, and in this question 4.4 was the answer. Correct. So एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इसी के बेस पे कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन हमें कैसे करना है. सी, ये हमारा एक एग्जाम्पल है. देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे. अब हमें एडिशन करना है सबसे पहले. तो एडिशन में क्या होगा? 2.435 प्लस 1.23 आपको 3.665 का दिया हुआ है. ठीक है. तो इसमें भी हम कैसे कर सकते हैं? इसके अंदर डेसिमल प्लेसेस में चेक करो कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है. 4 है यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स. ठीक है. और इसमें कितने हैं? 3 हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स. अब ये है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का केस. तो इसमें हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो नहीं देखने हैं. तो इसमें हमें क्या देखना है? डेसिमल प्लेसेस. तो अब हम डेसिमल प्लेसेस देखेंगे. तो डेसिमल प्लेसेस कैसे होगा? ठीक है. तो अब हम डेसिमल प्लेसेस के अकॉर्डिंग इसको देखेंगे क्योंकि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का केस है. तो डेसिमल प्लेसेस इसमें कितने हैं? आफ्टर 3 डेसिमल प्लेस हैं. और इसमें अगर हम देखें तो 2 डेसिमल प्लेस है. ठीक है. तो आंसर जो है उसमें भी हमें कितने देखने हैं कि 2 डेसिमल प्लेस तक ही हमें आंसर लिखना है. 2 तक ही लिखना है ना. तो 2 तक अगर हम आप इसको वेरीफाई करते हो तो कैसे होगा? 3.665 है. ठीक है. तो 2 डेसिमल प्लेस तक पहले हमारे पास 3 पॉइंट. अब 2 डेसिमल प्लेसेस देखने हैं तो 6 हो जाएगा. दिस विल बी द आंसर. करेक्ट. क्योंकि लास्ट में 5 है वो, तो उसको तो हम देखेंगे नहीं. 2 डेसिमल प्लेस तक देखना है. Is it right? Is there any problem in this question? Yes. So can we take one example for subtraction as well? So yes, I am pasting one question for subtraction as well. See, this is the question of subtraction, right? So we can calculate the answer of subtraction as well according to the decimal places, because we have to see the decimal places in the subtraction.
So in the first one, how many decimal places are there? 3 decimal places. And in the next digit, how many decimal places are there? 4 decimal places. Correct. So the answer should be equal to 3 decimal places. We have to round off to 3 decimal places. So how we can write it? So it will be 42.89, and this will be round off because 7 is greater than 5. Sorry, 8 is greater than 5. So 7 will be plus 1. It will be 8. So the answer will be 42.898. Correct. We can take a last example from multiplication. See, this is the example from multiplication. So let us calculate this as well. So in the multiplication and division, we have to see the significant figures, right? So इस digit में कितने significant figures हैं? 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 significant figures. और इस वाले में कितने significant figures हैं? 2 significant figures, क्योंकि जो स्टार्टिंग में 0 है वो तो काउंट नहीं होगा. ठीक है, तो अब जो आंसर होगा उसमें भी हमें राउंड ऑफ किस पे करेंगे? टू सिग्निफिकेंट फिगर्स. ठीक है, तो आंसर में इसको राउंड ऑफ करना है हमें. तो 0.0 तो काउंट नहीं होगा. 9 राउंड ऑफ करना है, तो 2 डेसिमल्स के लिए देखना है. तो 1 को अगर आप देखोगे तो 7 है उसके पीछे. तो 7 इज ग्रेटर देन 5. 7 ग्रेटर देन 5 है, तो 1 जो है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा. 1 + 1 विल बी 2. So the answer will be 0.92. This will be the answer of this question. Right? Is there any doubt in this topic? So we have completed the topic of significant figures. Okay. We have done with all the rules of the significant figures. Right? So this was the significant figure topic. We have studied about questions, rules for calculating the significant figures. These were the rules of significant figures. After that, we have studied about rounding off rules and the summary table, rounding off rules, many of the questions, and then after addition and subtraction and multiplication and division. And we have done examples as well. Okay. So this topic is over. In the next class, we will study about errors. Okay, so the next video will be on errors. Okay, thank you.